Hello physicists, welcome back to my channel Physics Hits. So today we are going to break down one of the most misunderstood topic, that is electrostatic potential of chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitance of class 12 physics. I guess many of us know the definition or have memorized the definition of electrostatic potential, that it is defined as the amount of work done in bringing a blah blah blah. But have we ever really asked what does this definition actually mean? Or what does it want to tell us beyond the words? And if you don't know, don't do it. Stay with me because we are going to clear it all till the end of the video. So let's uncover the real story behind potential. Now, before we dive into the extended definition, let me ask you something. When you hear the word potential, what comes to your mind? Maybe you heard something like he or she has a lot of potential. So, how we define potential in daily life? It is defined as the how much work can be done by something or someone. So potential basically means nothing but the how much work is done. And the same idea follows in physics. So the standard definition of electrostatic potential says that it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point against the electrostatic force and without acceleration. So we saw the definition. Now, let's break down the definition and understand what each word really wants to tell us. Now, to understand the definition, suppose there is a positive charge plus Q placed at the point O, okay? And as we saw in the first chapter, electric charges and field, we know that every charge creates a field around it, which is called electric field. So, it will also have a field like this. It will also have a field like this, which is called electric field, okay? And now, suppose there is a charge Q naught placed at infinity. It's placed at infinity, and Q naught is what? Test charge. Test charge is what? Test charge is a charge whose magnitude is always positive. And test charge is used to find the electric potential of the main charge. So यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन चार्ज है प्लस क्यू की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे. इट इज जस्ट यूज्ड एज ए टूल, ओके. एंड नाउ इसका वैल्यू क्या होगा? 1 कूलम. हमने इसको मान लिया था क्या? स्मॉल यूनिट स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसका वैल्यू है 1 कूलम फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन, ओके. इसका वैल्यू है 1 कूलम. एंड नाउ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट भी मान लेते हैं विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ r from this charge plus q. So okay, so let's go back to the definition of the electric potential, that it says that it is defined as the amount of work done in bringing a unit positive state charge from infinity to a given point. Given point यहाँ पर क्या है? P है. Against the electrostatic force and without acceleration. Against the electrostatic force and without acceleration. ये दो टर्म हमको जानना बहुत जरूरी है. Those are the main terms of this definition, okay? So पहले देखते हैं against the electrostatic force क्या कहता है. So यहाँ पर देखिए प्लस क्यू है और यहाँ पर क्यू नॉट है. सो क्यू नॉट तो हमेशा पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है. सो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स. सो अगर हम क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पे पिलाने की कोशिश करेंगे, सो दिस ओन बी दैट इजी, ओके. सो यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा जो इसको बाधा देगा, आने में बाधा देगा इसको, क्यू नॉट चार्ज को, जब हम इस पॉइंट पे भी लाने की कोशिश करेंगे. सो अगर हम इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पे भी लाने की कोशिश करें तो क्या करना पड़ेगा हमको? इस एब इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओवरकम करना पड़ेगा. सो इस ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, एब एक्सटर्नल. सो दिस एब एक्सटर्नल इज नथिंग बट द वर्क डन, जो हमने वर्क किया, वर्क करके जो फोर्स दिया. सो दिस इज द एंड अगर हम क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो क्या होगा? दिस एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके. सो दिस कंडीशन इट हैज टू ओबे, ओके. सो नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर एक बी पॉइंट मान लेते हैं. सो इंफिनिटी में एक पॉइंट है ए जहाँ पर एक क्यू नॉट लिस्ट है, ओके. अगर डेफिनेशन में क्या था? इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पे में लाने के लिए जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बट पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे. सो देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक डिस्प्लेस करें, कितना डिस्प्लेस करेंगे?
dx डिस्प्लेस करेंगे। ओके, सो dx डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन लगेगा वो क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। सो क्या होगा वो dw होगा, dw स्मॉल वर्क डन a से b तक इस तरफ लाने में। सो देखिए अब क्या होगा, f डॉट dx, f डॉट dx मैंने कैसे लिखा, वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या एक्सटर्नल फोर्स होगा, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स होगा क्योंकि हम एक्सटर्नल इस तरफ दे रहे हैं। सो देखिए एक्सटर्नल फोर्स होगा एंड एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड यहाँ पर मैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूँ डॉट dx एंड यहाँ पर देखिए आप एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड dx, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। और हम क्यू नॉट चार्ज को ए से बी किस तरफ ला रहे हैं, इस तरफ से ला रहे हैं। सो dx और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में एंगल क्या होगा 180। सो देखिए आप एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक dx कॉस आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा यहाँ पर थीटा क्या है 180 है, कॉस 180 एंड कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। सो देखिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक dx आ जाएगा यहाँ पर एंड एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पाया था कूलम्स लॉ। सो कैसे हम कूलम्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखिए आप इस ओ पॉइंट पे ए प्लस क्यू है और ए पॉइंट पे क्यू नॉट है, ए पॉइंट कहाँ पर है इन्फिनिटी में ही है। सो यहाँ पर देखिए मैं अगर इस प्लस क्यू और क्यू नॉट चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस मान लेता हूँ, एक्स डिस्टेंस मान लेता हूँ। सो इन दोनों के बीच में जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, सो क्या होगा देखिए आप नीचे जगह नहीं ऊपर लिख देता हूँ, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ। सो देखिए क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, k is what, k is nothing but the 1 by 4 pi epsilon naught, and epsilon naught is what, electric permittivity of free response. So q is this and q naught is this, and x square, x is the distance between these two charges. Okay, so now if I put this electrostatic k q naught, k q naught by x square dx. Okay, so this is the small work done. Okay, this is the small work done, but हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे लाने के लिए जो स्मॉल वर्क टोटल वर्क डन होगा वो चाहिए हमको। सो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना। सो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ इस इक्वेशन। सो देखिए इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पर देखिए लिमिट क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। सो क्या होगा 0 टू डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या चाहिए, एक यूनिट कहाँ पर है, इन्फिनिटी में है, और इन्फिनिटी से हमको कहाँ पर लाना है, देखिए इस पॉइंट पी पे लाना है, और पॉइंट पी किस डिस्टेंस में है, आर डिस्टेंस में है। सो क्या होगा इन्फिनिटी से आर तक का लिमिट होगा यहाँ पर देखिए। सो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए के कॉन्स्टेंट है, के मतलब इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और क्यू नॉट ए भी कॉन्स्टेंट है, ए भी बाहर आ जाएंगे। सो देखिए माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन रहेगा इन्फिनिटी से आर, और देखिए एक्स स्क्वायर नीचे है, सो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू द पावर एक्स माइनस टू एंड डी एक्स आ जाएगा। सो अभी इसको प्रोसीड करने के लिए मैं इसको प्रोसीड हो रुकिए। सो नाउ यहाँ पर देखिए डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करा, कौन सा वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन, अगर हम एक्स टू द पावर एन डी एक्स यूज़ करें तो क्या होता है, इसके ऊपर एक 1 ऐड हो जाता है, देखिए एक्स एन प्लस 1, और नीचे पावर आ जाता है। सो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा देखिए। सो एक्स माइनस टू प्लस आ जाएगा, ऊपर एक प्लस 1 और नीचे भी माइनस टू प्लस 1, और लिमिट तो रहेगा इन्फिनिटी से आर तक। ओके, सो यहाँ पर देखिए इस -2 + 1 क्या होता है, -1 जाएगा, और ये -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या होगा के क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस से प्लस आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए एक्स, और ऊपर क्या रहेगा एक्स टू द पावर -1 इन्फिनिटी से आर तक। ओके, सो देखिए के क्यू क्यू नॉट और एक्स टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर देखिए 1/r लिखेंगे पहले, और 1/r इक्वल टू के क्यू
क्यू नॉट 1/r माइनस 1/infinity, और 1/infinity क्या होता है, 0 होता है। सो ये तो गया, इससे कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो देखिए आप, W इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर। सो ये मिल गया हमको वर्क डन। सो अभी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकिए थोड़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैं इसको पूछ देता हूँ थोड़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द, क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्टर्स। सो यूनिट पॉजिटिव टेस्टर्स को हम अपोन में लिखते हैं। सो यहाँ पर होगा अपोन में हो, एंड देन द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। W क्या निकला, के क्यू नॉट बाई आर बाई क्यू नॉट। सो फॉर्मूला क्या होगा, ओके, फॉर्मूला, सो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, एंड V इज व्हाट, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पर के क्यू बाई आर। So this is the formula of electric potential due to the point charge प्लस क्यू के लिए हमने डिफाइन किया, ओके। एंड एक टर्म को मैंने नहीं बोला, क्या था वो, विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, देखिए, हम इस चार्ज को जो लाएंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे लाएंगे, वो स्टेडीली लाएंगे, स्लोली लाएंगे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट विदाउट एक्सीलरेशन मीन्स एक्सीलरेशन 0 होगा, तो एक्सीलरेशन कब 0 होगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। सो कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने क्यों किया, कहा है यहाँ पर, सो देखिए, मतलब जब हम इस चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से लाएंगे, सो अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लाए तो क्या होगा, यहाँ पर एक ये जो चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। सो काइनेटिक एनर्जी गेन करने से क्या होगा, एप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, रिपल्सिव एप इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके वजह से जो क्यू नॉट चार्ज है वो बहुत दूर चला जाएगा, वो अंदर आ ही नहीं पाएगा इस पॉइंट पे। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को लाते हैं। सो देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक समझ देता हूँ क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी लाते हैं हम, कैसे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। देखिए अब आपको तो पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला डेल पी ई डॉट डेल के ई, ये वर्क डन का फॉर्मूला था, ओके, वर्क डन का फॉर्मूला। सो देखिए वर्क डन डेल पी, यहाँ पर डेल पी लिख दिया, और डेल के ई को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। वी टू मीन्स जब इन्फिनिटी में था तब उसका वेलोसिटी कितना था, जब वी वन जब इस पॉइंट पी पे आया तो इसका वेलोसिटी कितना था। सो अगर हम मान ले वी टू इक्वल टू वी वन, मतलब असल में तो नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी में जब रहेगा तो मतलब हमने रेस्ट में नहीं रहेगा ये, मतलब आइडियल सिचुएशन है थोड़ा, मतलब ये जो चार्ज है वो पहले से ही थोड़ा मूव कर रहा है, मतलब ये रेस्ट में नहीं है इन्फिनिटी में। सो V2 का कुछ वैल्यू है, V2 का कुछ वैल्यू है और V1 का भी कुछ वैल्यू है, और दोनों सेम होगा, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहे हैं। सो भी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा इन्फिनिटी में वो सेम होगा। सो V2 इक्वल टू V1 होगा। सो ये तो चला गया। सो क्या होगा, दैट वर्क डन इज ओनली एसोसिएट विद द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो इफ वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, देन हमने जो इसको पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने से पहले जो वर्क डन का फॉर्मूला निकला था वो क्या था, W इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दैट इज क्यू एंड क्यू नॉट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, विच इज नथिंग बट द दिस वर्क डन। So this is the potential energy between these two charges, and this is the electric potential due to the point charge plus q. Why I call this point charge? So देखिए ये point charge मैंने क्यों कहा, so इसका जो साइज है, इस प्लस क्यू का जो साइज है, और क्यू नॉट कहाँ पर है, इन्फिनिटी में है। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। सो इन दोनों के मतलब जो डिस्टेंस है और इसके साइज को कंपेयर करें तो इसका साइज बहुत ही छोटा है, इक्वल टू ए पॉइंट। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड ए point charge. So this is the electric potential due to this point charge q, and this is the potential energy between the two system charges, that is plus q and q naught. So physicists हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। सो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, देखिए अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, देखिए यहाँ पर तो क्यू नॉट चार्ज है, अटैच चार्ज जो इन्फिनिटी से आएगा। सो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज था तो क्या था, रिपल्सिव फोर्स था, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए नेगेटिव है और पॉजिटिव है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट पी है और
ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को फोर्स इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पर पॉइंट पी पे लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट पी के बियॉन्ड आने की कोशिश करेगा। पर हमारे डेफिनेशन में क्या था, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको वर्क डन करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस तरफ होगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ होगा, एफ इलेक्ट्रो, एंड हमको एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट। सो इसके अगेंस्ट हमको एफ एक्सटर्नल करना पड़ेगा, विच इज व्हाट, इज नथिंग बट द वर्क डन। ओके, सो ये दोनों तो बैलेंस कर देंगे तभी। और क्या था, विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लाएंगे। सो स्टेडीली लाएंगे, स्लोली लाएंगे, तो इसका हम मोशन कंट्रोल कर रहे हैं। इसको हम इस यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं करने देंगे, फ्रीली मूव होगा तो ये तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसको अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, हम इसको पर्टिकुलर पॉइंट में लाएंगे। सो इसलिए विदाउट एक्सेलरेशन एंड क्या था, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टर्म का यूज किया है। सो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर आ जाएगा। के इज व्हाट, 1/4πε0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ, दोनों के केस में क्या होता है, के मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बाई आर। सो ये हमेशा के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होता है, आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। सो ये हमेशा क्यू क्यू ही रहता है, यहाँ पर कुछ साइन का कुछ खेल नहीं है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपको साइन देना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो यहाँ पर माइनस के क्यू बाई आर होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो फिर we can find the formula for electric potential for the negative charge also, that is v equal to minus k q by r। जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, सो इसको भी वी कैन इजीली डिराइव। ओके, so now v is basically means that work by charge, electric potential basically means work done by charge. So it's a scalar quantity, electric potential is a scalar quantity. How? Work done is a scalar quantity, charge is a scalar quantity, so it's obviously a scalar quantity. So देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एंड चार्ज का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ए टी। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 1। एंड व्हाट्स द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। नाउ दिस इज द SI unit, and now we will define 1 volt. We will define 1 volt. How can we define 1 volt? With the help of this formula, okay? So 1 volt equal to 1 joule by 1 coulomb. 1 volt is defined as that 1 joule of work done in bringing a unit positive take charge of 1 coulomb from infinity to the given point. So जो take charge है infinity में, उसका वैल्यू अगर 1 coulomb हुआ, और उस 1 coulomb चार्ज को अगर गिवन पॉइंट में लाने के लिए क्या हुआ, वो 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। ओके, एंड अभी अगर आप मान लीजिए 1.5 वोल्ट का एक बैटरी है, इसको हमने एक टॉर्च के साथ कनेक्ट कर दिया है। सो व्हाट डज दैट 1.5 वोल्ट बैटरी मीन्स? सो दैट 1.5 वोल्ट बैटरी मीन्स 1.5 जूल बाय 1 coulomb. So that 1.5 volt battery provides 1.5 joule of work or energy to each 1 coulomb of charge flowing through the torch. So torch में तो बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं, so सभी चार्ज को ये 1.5 जूल का वर्क और एनर्जी प्रोवाइड करेगी, so जिससे वो टॉर्च ग्लो करता है। so ये हो गया। so अभी देखिए एक चीज़ है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए आप। so इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड भी का क्या है, के क्यू बाई आर। सो देखिए E is inversely proportional to 1 by r square and V is inversely proportional to 1 by r only. So देखिए आप यहाँ से अगर हम V और R का, that is electric potential and electric field का ग्राफ ड्रॉ करें with the distance, so how the graph will look like? So अभी हम उसको देख लेते हैं। so देखिए y एक्सिस में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर होगा डिस्टेंस। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर दो ग्राफ होगा, एक को मैं ए नाम देता हूँ और दूसरे को बी। सो देखिए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 by
प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² एंड v इज 1/r ओनली। सो यहाँ पर देखिए ये ए वाला गैप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि सो 1/r² है, ये ज़्यादा इंक्लाइन होगा। सो ए वाला गैप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड जो ए वाला गैप होगा ए होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो हमने ई और वी का ग्राफ देख लिया विद डिस्टेंस। सो वी न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को फील भी कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।